DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Good morning everybody, this is Jaspinder Singh. This year I secured AIR 33 at UPSC CSE 2021 and this was my second attempt, and in my first attempt I couldn't clear the prelims, and in my second attempt I was able to go through all the process and get this rank. I'm grateful to God for this, and through this interview we will be talking about कि मेरा optional क्या था, मैंने क्यों optional वो choose किया, what was my strategy with respect to that optional, and how to maintain consistency and you can say mental stability with respect to your preparation, because it's quite a journey. तो law optional था मेरे पास, और so I have done my graduation, that is BA LLB honors from Punjab University Chandigarh. So I was in the 5 years department, that is UILS of Punjab University. So in 2019 I graduated, but when I started my degree, so I was already having this in my head कि मैंने सोशोलॉजी को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है. लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए और जब मैंने सिलेबस को देखा कि सोशोलॉजी का क्या सिलेबस है, सो आई वाज नॉट दैट कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू सोशोलॉजी, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन में मेरा जो सब्जेक्ट था दैट इज़ लॉ, और जो भी सोशोलॉजी का मैंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा, सोशोलॉजी वाज नॉट ओवरलैपिंग विद रिस्पेक्ट टू द यूपीएससी पैटर्न. सो उस वजह से आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन आंसरिंग द क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तब लेटर ऑन आई चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ law optional, and also I checked the syllabus. The syllabus was having just substantive portion of law and not the procedural part, so that was something of a relief to me. And when I looked into the PYQs, I was quite comfortable कि I will be managing these answers. So that was something that gave me push to take law as my optional subject. Also, another reason which a law student will always give is that he or she doesn't want to lose the connect with the law, because कहीं ना कहीं plan B practice होता है, और people not want कि उनका जो law के साथ एक connect है वो टूटे. So again that was another reason for always being connected with law through your optional subject. और also it is not necessary that this subject is very scoring, say sociology scoring है या कहो PSIR scoring है तो वो optional ले लो. So it's not always, और anthro is scoring तो वो आप optional ले लो. So what you should see is the subject which you are taking as your optional, उसमें आपका interest है या नहीं है. So that is important. So मेरे पास law था, मैंने like 5 year law में काफ़ी मूड कोर्ट कंपटीशन किए थे, और वो सारे मूड कोर्ट कंपटीशन मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे बेस्ड थे. तो तब से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आई लाइक इट एज अ सब्जेक्ट. तो एक वो भी बेंड था. और पेपर 1 में काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है, और 3 ही सब्जेक्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. सो उसमें लाइक यू हैव गुड पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अगेन इट्स मोर ऑफ अ सब्सटेंटिव लॉ और नॉट अ प्रोसीजरल लॉ. So that was how I chose law as my optional. If we talk about the strategy, तो मेरी क्या strategy रही है, तो मैंने वही बुक्स पढ़ी जो मैंने अपने लॉ कोर्स के दौरान पढ़ी थी. लाइक मैंने दुक्कीज़ कम सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करी हैं. टॉपर्स से कि लॉ टॉपर्स कहते हैं कि दुक्कीज़ से काफ़ी किया है उन लोगों ने. मैंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के लिए दुक्कीज़ की सहायता ली है. लाइक दे वर नॉट माई प्राइमरी सोर्स. मैंने आई ट्राइड टू फॉलो those sources which I followed in my say law course during my degree at Punjab University. So I followed the same sources. The reason for this was so that I'll be comfortable with those books that I've already read. So I read for the Constitution, I read Narendra Kumar's Nutshell. For Public International Law, I followed S.K. Kapoor. For administrative law, I followed Dukki. I relied more on Dukki. And now if we talk about paper 2, then for crimes I followed Pillai.
for torts I followed summary which is given at the back of R.K. Bangia, so that was वो मैंने फॉलो किया. और फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैंने अपने कोर्स में पेपर्स के दौरान यूनिवर्सल की एक पतली सी कॉन्ट्रैक्ट की बुक देखी थी. सो यूनिवर्सल पब्लिकेशन की वही बुक मैंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ़ॉलो करी. और बिज़नेस लॉज एंड उन सब लॉज के लिए मैंने नोट्स रेफ़र किए जो मार्केट में अवेलेबल थे. ओल्ड राजेंद्र नगर की मार्केट से मैंने आई थिंक एम्बिशन लॉ के नोट्स लिए थे, तो वो काफ़ी देवर कंसाइज नोट्स. और CLD के लिए व्हाट आई फॉलोड वाज कि इंटरनेट पे बैठो और कुछ ढूंढो, और सम नोट्स वर टेकन फ्रॉम फ्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो फ्री में प्रोवाइड कर रहे थे. सो आई टुक दोज नोट्स. जैसे डिफेक्टो लॉज से मैंने नोट्स लिए. सो ऐसे करके लाइक आई गॉट द सोर्सेज सॉर्टेड. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप सोर्सेज चूज़ करें आप उन पे रिलाई करें. वो ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बुक्स पे, अपने टीचर्स पे, अपने नोट्स पे. सो अगर वो ट्रस्ट के साथ आप अपना कोर्स पूरा कर रहे हो, अपना ऑप्शनल या अपना GS पढ़ रहे हो, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज इट विल हेल्प यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं सब पढ़ रहा हूँ, सही से पढ़ रहा हूँ. द थिंग्स विल बी सॉर्टेड. इससे सब हो जाएगा. दैट फीलिंग विल कम इन टू यू इफ़ यू ट्रस्ट योर सोर्सेज. सो उसके बाद मैंने एक बार अपनी डिग्री के बाद सारी बुक्स सिलेबस के हिसाब से पढ़ी. फिर वो PYQs देखता था. आफ्टर हैविंग द रीडिंग ऑफ द बुक्स में देखता था जो PYQs वाली बुक है उसमें जो उस टॉपिक के क्वेश्चंस है क्या मैं कंफर्टेबल हूँ उनको आंसर करने में. सो वो मेरे लिए एक प्रैक्टिस रहती थी. लाइक इट बिकेम पार्ट ऑफ मी कि कोई भी टॉपिक पढ़ता था तो मैं PYQs देखता था. और फिर ये देखता था कि जो मैंने सोर्स से पढ़ा है वो उसमें वो सफिशेंट है आंसर लिखने के लिए. सो तब मैं आगे बढ़ता था उस सब्जेक्ट से. और ऐसे करके मैंने एक रीडिंग पूरी कर ली थी अपने लॉ कोर्स के बाद. उसके बाद मेरी जो सेकंड रीडिंग थी वो मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई पहले बार. एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की पहले मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई. तो तब मैंने फॉर एवरी टेस्ट, फॉर एवरी सेक्शनल टेस्ट 8 दिन देता था मैं अपने आप को. उन 8 दिनों में मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, रिवाइज़ भी करता था और फिर उन शॉर्ट नोट्स को भी रिवाइज़ करता था. सो देन आई यूज़ टू गिव द पेपर. तो फिर ऐसे करके आई completed my second revision and started making short notes. उसके बाद जब मेरा पहला प्री हुआ, सो आई वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन. सो मैंने सोचा कि लाइक हो सकता है कि इस बार पेपर क्लियर हो जाए. तो मैंने तब भी एक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली. मैंने लॉ एक्सपर्ट MV की फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की और मैंने उनके वो सारे पेपर वेरी डिलीजेंटली मैं मॉक पेपर देता था. और बिफोर एवरी मॉक पेपर मैं उसको सिलेबस के हिसाब से अपने शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करता था. और फ्यू थिंग्स आई यूज़ टू फॉलो फ्रॉम बुक्स और अपने शॉर्ट नोट्स को और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करता था. तब तक जयदेव रिज़ल्ट भी आ चुका था और आई गॉट टू नो कि जयदेव सर के नोट्स अपलोडेड हैं. तो मैंने उनके जो रिवीजन नोट्स थे वो देखे और अपने रिवीजन नोट्स से मैच किए. Some things I took from his notes which were lacking in my notes. So ऐसे करके मैंने अपने नोट्स को काफ़ी comprehensive बना लिया था. So when during my actual preparation for this mains, that is after my second prelims, बहुत कम पढ़ा होगा like book से, like very few things जो मेरे नोट्स में नहीं अच्छे से दी गई थी. लेकिन most of the things like 90% of the work was sorted by my revision notes only. So what I want to say is कि आप अपने जो revision notes हैं उनको बहुत comprehensive बनाइए, अपने तरीके से बनाइए. जैसे मैं अगर नोट्स कल को अपलोड कर दूँ तो आप उनको प्राइमरी सोर्स मत बनाइए, उनसे जस्ट ये मदद लीजिए कि ये कैसे क्या किया है, राइट. अदरवाइज़ जो भी अपने हिसाब से अपने रिवीजन नोट्स बनाइए, दैट विल बी सॉर्टिंग योर पर्पस दैट यू विल बी एबल टू रिवाइज दैम ईजीली, क्योंकि वो आपके हिसाब से बने होंगे. सो दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑप्शनल. और लॉ ऑप्शनल में एक बात रहती है कि पीपल फील के उनके मार्क्स शायद ज़्यादा नहीं आएंगे बिकॉज इतना स्कोरिंग नहीं है सब्जेक्ट. सो आई रियली वांट टू टेल कि इस बार मैंने पेपर जस्ट पूरा ही किया था. लाइक जो पिछला 75 मार्क्स का जो पेपर था वो मुझसे अच्छे से मैनेज नहीं हुआ. आई जस्ट कम्प्लीटेड इट. आई डेंट गिव माई 100% इन दैट पेपर, राइट. तो जब सब ये हो रहा था तो मैं इसके बावजूद मेरे 273 मार्क्स हैं, 136 फ्रॉम पेपर 1, 137 फ्रॉम पेपर 2. सो
all I want to say is that if you manage your paper well, you can cross 290 as well. मेरा पेपर इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया, so maybe that is the reason that I got 273. अगर आप लोग पेपर को पढ़ के और उसको टाइम वाइज उसको अच्छे से मैनेज कर लेते हो और अपना फुल 100% ईच एंड एवरी क्वेश्चन को देते हो, तो यू कैन ईजीली गेट 290 प्लस. इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर पेपर आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम when you're done with a good amount of revision. So that is with respect to preparation of law optional. And now I want to talk about what is overlap between GS papers and law optional. So there also it is going, law optional helped me because in my GS2 I secured 123 marks, and kahin na kahin it was law optional that helped me. Polity portion of GS2 I haven't done separately except for few topics like constitutional and non-constitutional bodies और कंपैरिजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड. बस ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने पॉलिटी के लिए अलग से पढ़े. बाकी सारा मैंने जो भी अपने लॉ ऑप्शनल में पढ़ा वही मैंने रेप्लिकेट, बस वही पढ़ा और उसके बेस पे ही अपने GS2 के आंसर्स लिखे हैं. बट इट्स वेरी लाइक important to understand that how you write your answers, because it's not that you are going to write your law optional के answer hoo-bahu in your GS2 के answers. In your GS2 you need to be very specific with respect to what is asked in the question. You need to be very specific that कहाँ से पूछा गया, what is the current affair that the examiner is trying to touch in this paper. So in GS2 वो जनरल आंसर होगा और लॉ आपको ब्राउनी पॉइंट्स देगा. फॉर एग्जांपल आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कोट करोगे, आप केस लॉज कोट करोगे, आप जजेस ने क्या कहा, कोई थिंकर्स ज्यूरिस्प्रूडेंस के कौन से थिंकर्स, फॉर एग्जांपल रॉल्स क्या कहते हैं जस्टिस के बारे में. सो ऐसी कुछ बातें दैट यू विल बी राइटिंग इन योर GS2 के पेपर्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ लॉ. सो ऐसा दैट कैन बी डन. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ब्राउनी पॉइंट्स लॉ से लेके GS2 में लिखो. नॉट ओनली इन GS2, इवन इन GS1 व्हेन यू कोट certain laws with respect to weaker sections or say women or say society, तो भी आपको like एक आधा मार्क्स ज़्यादा मिलेगा. So what I want to say is that your law optional is going to help you in GS1, though minutely, but yes, in GS1 as well. In GS1 I secured 112 marks. So again maybe something from law optional was used there, but it was more of when the problem is asked, you in the solutions you quote the laws very confidently. So वो वहाँ मदद मिलती है उस चीज़ की. और even in your ethics you can quote few laws. So ऐसे करके काफ़ी overlap रहता है, लेकिन ज़्यादा overlap GS2 के साथ है. तो GS2 was sorted constitution करके for the law optional. और if we talk about this overlap, तो I would say one must be very sure about having distinction के लॉ के आंसर्स कैसे लिखने. लॉ के आंसर्स वैसे लिखने जैसे हम अपने ग्रेजुएशन के दौरान लिखते थे, राइट. कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कोट करने हैं, फिर जजेस क्या कहते हैं, आई मीन सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है उसके बारे में, फॉरेन में क्या चल रहा है उसके बारे में. देन यू राइट द एसेंशियल्स ऑफ दैट वेरी आर्टिकल, द थिंग दैट इज़ आस्क्ड इन द पेपर. सो उसको आपको बेयर एक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, है ना. सो दैट वाज ऑल विद रिस्पेक्ट टू माय लॉ ऑप्शनल एंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट इज़ द ओवरलैप विद GS2 एंड लॉ ऑप्शनल. अगर हम बात करें कि इस प्रेपरेशन के दौरान हाउ टू गेट कंसिस्टेंट एंड हाउ टू यू कैन से हैव दैट मेंटल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये जर्नी 1 साल से बढ़कर कभी 2 साल कभी 3 साल तक चली जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो ब्लिंकर्स अप्लाई करने हैं कि अपनी आँखों पे, सो दैट वी जस्ट गेट फोकस्ड अपॉन व्हाट वी वांट टू अचीव. वो बहुत ज़रूरी है कि इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी आएंगी, घर पे बहुत प्रॉब्लम चलेगी या कहीं और कुछ होगा. सो देयर आर सर्टेन फ्रेंड्स में कुछ चल रहा होगा, कोई बाहर जा रहा होगा, कोई समबडी विल बी गेटिंग अ जॉब और आपको यू माइट बी फीलिंग कि अच्छा आई एम जस्ट स्टडिंग, आई हैव गॉट नथिंग सो फार. सो ऐसी सब डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, सबके मन में आती हैं, बीइंग ऑनेस्ट, है ना. सो फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू टेल योर माइंड दैट दिस इज़ टाइम, इट विल पास. Even in the good times you need to tell yourself कि this is time, it will pass. In your bad times you tell yourself this is just a matter of time and it will pass. So if you do this,
आई थिंक दिस विल बी हेल्पिंग यू इन कमिंग आउट ऑफ सच अ सिचुएशन जो कहते हैं कि जिसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या इधर उधर जा रहा है आपका मन, तो दैट विल बी हेल्पिंग यू सॉर्ट इट आउट। और अगर मेंटल स्टेबिलिटी की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फिज़िकली भी फिट रहो, और मेंटली अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हो तो मेडिटेट करो। अपना जो भी आप अपना हॉबी है कोई, लाइक यू मस्ट फॉलो दैट हॉबी। फॉर एग्जांपल आई यूज़ टू डू भंगड़ा फॉर लाइक इन एवरी 2-3 days मैं कुछ ऐसा करता था, सो दैट माई माइंड शुड गेट दैट फूड, राइट। सो वो खुश हो जाए। और डेली आई यूज़ टू टॉक टू माई पेरेंट्स, 1-आधे घंटे के लिए आई यूज़ टू सिट in front of them and just talk constantly. So ऐसी कुछ बातें आप कीजिए so that your mind feels relieved, right? That is very important. वो burden नहीं होना चाहिए कि आप बस पढ़ ही रहे हो. So that is very important कि your mind should get some food. So mental stability के ऊपर ध्यान दीजिए. You meditate, you do yoga, you do पाठ, you read books, you dance, you paint. Whatever you like to do, give some time for the relaxation of your mind. So वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, सो फॉर मी हाउ आई केप्ट माई कंसिस्टेंसी ऑन वॉज कि एक बार तो सब पढ़ लेते, उसके बाद रिवाइज भी एक बार सब कर लेते, उसके बाद की कंसिस्टेंसी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। फॉर दैट आई बिलीव टेस्ट सीरीज़ दे हैव हेल्प्ड मी, क्योंकि चेकिंग योर सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना कॉम्पिटिशन खुद हो, फॉर एग्जाम्पल टुडे यू आर गेटिंग 90 मार्क्स इन योर प्रीलिम्स, कल को आपको 92 आ रहे हैं और फिर आपके 89 आ गए, तो अगर आप ये सब देख रहे हो अपना, राइट, सो यू मस्ट कीप ऑन इम्प्रूविंग के हाँ दिस सेंस ऑफ हैविंग इम्प्रूवमेंट विल हेल्प यू टू बी मोर कंसिस्टेंट। तो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे इस बात पे, तो यू विल बी एबल टू अचीव बेटर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दिस very goal of yours. So consistent रहने के लिए even in mains और even for law optional you need to follow test series. वो आप टेस्ट सीरीज़ जब ज्वाइन करते हो, फिर आप अपने आप को टेस्ट करते हो, फिर वो एनालाइज करते हो कि कहाँ गड़बड़ है, वेयर आई नीड टू इम्प्रूव, फिर वो आपकी कुछ वीकनेस वाले एरियाज़ आपको पता चलते हैं, फिर आप वहाँ इम्प्रूव करते हो। सो दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द आस्पेक्ट ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। तो ऐसे करके कीपिंग योर माइंड स्टेबल एंड गिविंग मोर टेस्ट एंड गिविंग फूड टू योर माइंड, लाइक डूइंग ऑफ योर हार्ट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर और 1 hour, सो वो आपके मन को वो इट विल बी हेल्पिंग यू टू सॉर्ट द थिंग्स आउट, सो दैट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज अदरवाइज दिस जर्नी गेट्स very monotonous. You feel like not reaching somewhere during this journey. So ऐसा कुछ अगर फील हो रहा है तो बस आप अपने मन को ये बताइए कि ये समय है, ये बीत जाएगा, even something good, even something bad. So दोनों के दौरान आपने ये बताना है अपने मन को. I think that would be all, and I wish all the aspirants good luck for their journey, for their goals that they want to achieve, and do well in your exams, and you prepare well, और अपने मन को बस वो फूड देते रहिए, so that will be helping you to be consistent. And again, I would like to thank DKT platform for giving me this opportunity to share with you guys my strategy of law optional and other certain experiences of mine. I really thank them for their initiative.